Good afternoon, students. This is Ranjan. Once again, welcomes you on Team Supercluster. Students, today we will study quadratic equation for ICSE class 9th. Okay, students. इन कुछ बच्चों के टर्मिनल एग्जाम्स में भी ये चैप्टर आ रहा है. That's why we will study the chapter quadratic equation. Okay. So let us start the chapter without wasting the time, students. We have to study quadratic equation. Okay. So students, first of all we discuss what is an equation. आप लोग क्लास 6 और 7 से पढ़ रहे हो इक्वेशन. तो बेसिकली वी कैन से दैट इन एन इक्वेशन there are two sides, that is LHS and RHS, separated by the sign of equality. यही होता है ना बच्चों. कोई भी इक्वेशन होगा, in any equation there are two sides, that is left hand side and right hand side, separated by the sign of equality. इक्वेशन है तो इक्वालिटी, इन इक्वेशन होता तो इनइक्वालिटी का साइन होता. ओके, सपोज इट इज रिटन 2x + 5 = 7. इक्वेशन होगा, यस, LHS है, RHS है, साइन ऑफ इक्वालिटी है. सपोज दिस इज रिटन x² - 5x + 7. इज दिस इक्वेशन? नो. Why? Because here there are not two sides, there is only one side. Okay. So students, इक्वेशन का मतलब आपको याद रखना है, there are two sides, that is LHS and RHS, separated by the sign of equality. Then we have to discuss what is quadratic equation. So students, आप लोगों ने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ इक्वेशन, ये सारी बातें प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने देखा होगा. नहीं देखा है, ध्यान देना है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? इफ मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल is 2, then equation is said to be quadratic. Okay students, there are many types of equation like linear equation, quadratic equation, cubic equation, biquadratic equation, so many, but we have to study quadratic equation. So if equations are given, then we have to recognize which one is quadratic. Then we see the maximum power of variable. You are familiar with variable, they change, they vary. Alphabets को variable बोलेंगे. Maximum power 2 हो बच्चों. if maximum power of variable is 2, then the equation is said to be quadratic. Okay, like x² - 4 = 0. मैक्सिमम पावर स्टूडेंट्स वेरिएबल x है 2 है, दिस इज क्वाड्रेटिक. y² - 5y + 6, स्टूडेंट्स मैक्सिमम पावर वेरिएबल का 2 है, सो दिस इज क्वाड्रेटिक. p² + 4x + 4 = 0. मैक्सिमम पावर 2 है स्टूडेंट्स. x + 1/x = 5. ध्यान देना है स्टूडेंट्स. इज दिस क्वाड्रेटिक? एस, दिस इज क्वाड्रेटिक. आप एलसीएम लोगे तो ये x² + 1 होगा. x² + 1 = 5x. now this is quadratic. okay, if the maximum power of variable is 2, then it is said to be quadratic. x³ - x² + x + 7 = 0. This is not quadratic students. Why? Because maximum power of variable is 3. Okay, so in a quadratic equation, maximum power of variable should be exactly 2. Okay, clear है बच्चों? Maximum power of variable is 2, then the equation said to be quadratic. Maximum power 1 होगा students, then it is called linear equation. Maximum power 3 होगा, then it is said to be cubic,
and if the maximum power of variable is 4, then equation is said to be biquadratic. Here we have to deal with quadratic equation. So in a quadratic equation, the maximum power of variable is 2. Okay, let us move further. Suppose students, here is x square minus 4 equals 0. X square plus y square is equals to 4. X square plus y square plus z square is equals to 16. Okay. Now students, is this quadratic? Yes, this is quadratic. Why? Maximum power of variable is 2, so it is quadratic. Here maximum power क्या है बच्चों? 2 है. It is also quadratic. And here maximum power of variable is 2, so it is also quadratic. So what is the difference between in these equations? So याद रखना है, this is quadratic equation in one variable. Quadratic equation in one variable, सिर्फ x है ना स्टूडेंट्स, कितनी भी बार हो लेकिन सिर्फ एक ही वेरिएबल हो. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स 0. एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7. सेम टाइप ऑफ वेरिएबल, सिर्फ सिंगल सेम टाइप ऑफ वेरिएबल है. सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल. हियर आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स. सो स्टूडेंट्स, दिस इज quadratic equation. This is quadratic equation in two variables, and this is students quadratic equation in three variable. Quadratic equation in three variables. Okay students, so what we have to study in this chapter? We will study quadratic equation in one variable. स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करोगे, मैक्सिमम पावर 2 होगा और सिर्फ सेम टाइप ऑफ वेरिएबल होगा. x है तो x ही रहेगा, y है तो y रहेगा, z है तो z ही रहेगा. सो इन दिस चैप्टर वी हैव टू डील क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ओके स्टूडेंट्स, सो इक्वेशन क्या है पता चल गया. क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 2 होगा, और हम लोगों को क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ओके, नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म. जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल. So this is students ax square plus bx plus c equals 0, where a, b, c are real numbers. A, b, c are real numbers. ठीक, this is quadratic equation. This is quadratic equation in variable x. In variable x. Okay, a, b, c are real numbers and a is not equals to 0. So students, first of all, whenever you are going to solve any type of quadratic equation, whenever you are going to solve any type of quadratic equation, first of all you have to arrange the equation in general or standard form. जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म प्रीवियस बेसिक लेक्चर्स में देखा है. एक्सपेंशन के बेसिक लेक्चर्स में किसी भी एक्सप्रेशन को पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो. तो जब भी आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे, पहला काम जनरल फॉर्म चेक करना है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अरेंज इन जनरल फॉर्म, और ये पावर्स के डिक्रीजिंग में. दिस इक्वेशन इज इन वेरिएबल एक्स. ABC स्टूडेंट्स अल्फाबेट्स है, बट इसको हम लोग रियल नंबर, यहाँ पे कोई ना कोई नंबर होगा ABC. ठीक है, C को कांस्टेंट टर्म बोलेंगे बिकॉज वेरिएबल इसके साथ x नहीं है. ठीक है, तो पावर 2, पावर 1 और कांस्टेंट टर्म. ओके स्टूडेंट्स, द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन to retain its identity is that coefficient of maximum power never should be 0. Okay students, इसीलिए हमने लिखा है a is not equals to 0.
देखो बच्चों ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ लेना है। सपोज हम b की वैल्यू 0 पुट कर दें तो ये क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स प्लस सी, 0 इंटू एक्स 0, दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल 0। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक अभी भी है, मैक्सिमम पावर 2 बचा है। सपोज कांस्टेंट टर्म 0 सब्स्टिट्यूट कर दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 0 इक्वल 0, नाउ दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल 0, अभी भी ये क्वाड्रेटिक होगा। सपोज वी सब्स्टिट्यूट a इक्वल 0, सो दिस इक्वेशन बी 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा, नाउ दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक। तो कोई भी इक्वेशन होगा बच्चों, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमेशा वो क्वाड्रेटिक ही रहे। इट नेसेसरी कंडीशन इज दैट कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर नेवर शुड बी 0। मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट a था, अगर हम a को 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ठीक, तो हम लोगों को जनरल फॉर्म याद रखना है। पहला काम है आप सॉल्व करोगे, सबसे पहले जनरल फॉर्म चेक करना है, जनरल फॉर्म में अरेंज हो गया, देन वी विल सॉल्व द इक्वेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और रूट्स, number of solutions or roots of quadratic equation of ax square plus bx plus c equals 0। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा आप मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी कैन गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2। आप लोग जितने भी इक्वेशन सॉल्व करोगे बच्चों, सब में उसके सॉल्यूशंस एग्जैक्टली 2 आएंगे। ठीक है, हमेशा 2 सॉल्यूशंस फाइंड करोगे। इसका कॉन्सेप्ट ये है बच्चों, कोई भी इक्वेशन का जो डिग्री होता है, जो मैक्सिमम पावर होता है, उसके उतने ही सॉल्यूशंस आते हैं। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू विल गेट 2 सॉल्यूशंस। ओके, सपोज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 लिखा हो तो बच्चों हम लोग स्क्वायर रूट लिख के 2 लिखते हैं, बिल्कुल गलत है, प्लस माइनस 2 लिखना है। जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिखोगे हमेशा आंसर प्लस माइनस में। बहुत लोग गलती करते हैं, बार बार बताने के बाद भी आप लोग गलत करते हो, बट क्वाड्रेटिक में नहीं चलेगा, याद रखना है। एक्सपेंशंस में भी मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ 2 है तो इसके 2 सॉल्यूशन चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस। क्यों होता है ऐसा, आप ऐसे भी देख सकते हो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4 है, आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4 कर सकते हो बच्चों, और 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बन गया फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सभी को पता है ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया। तो x माइनस 2 एक्स प्लस 2 इक्वल 0। अब स्टूडेंट्स x माइनस 2 इक्वल 0, x की वैल्यू 2, x प्लस 2 इक्वल 0, x की वैल्यू माइनस 2। तो सॉल्यूशंस क्या आया, प्लस माइनस 2 आया। तो याद रखना जब भी परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा आप स्क्वायर रूट लिखोगे, प्लस माइनस में आंसर्स लिखोगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली वी विल गेट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2। तो पहले इक्वेशन को जनरल फॉर्म में अरेंज करेंगे, फिर हम लोग सॉल्यूशंस कितने फाइंड करने रहेंगे, 2 फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स कई मेथड्स हैं, बट बेसिकली हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड, आगे आप हायर क्लासेस में ढेर सारे मेथड्स सीखोगे, मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, और भी कई तरीके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। बट हम लोगों को बच्चों 2 बातें याद रखनी है, फैक्टराइजेशन मेथड और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। In these 2 methods you have studied about the methods in class 8th also। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी पढ़ा होगा और फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से पहले
आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जरूर आना चाहिए बच्चों, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जरूर आना चाहिए। क्या होता है आप उसको देख लो, मैं एक बार मेथड्स बता दे रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सप्रेशन बी इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो हमेशा क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म सपोज कर लो, हमेशा इसी फॉर्म में होना चाहिए, पावर 2 पावर 1 कांस्टेंट टर्म, हमेशा इसी फॉर्म में होना चाहिए, पावर 2 पावर 1 कांस्टेंट टर्म, तभी आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई करोगे। फिर सेकंड केस क्या है, मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म, मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ध्यान देना है, कांस्टेंट टर्म क्या है सी, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए सी, ठीक है। 2 भी हो सकता है, 3 4 5 कोई भी नंबर होगा, ए और सी रियल नंबर्स है यहाँ पे, तो रियल नंबर मीन्स एनी नंबर्स। जनरल फॉर्म में अरेंज किया, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म विद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझना है। अब नंबर मिल गया स्टूडेंट्स, ऑब्टेन ऑल द फैक्टर्स, ऑब्टेन ऑल द फैक्टर्स ऑफ AC। अब बच्चों मल्टीप्लाई करके जो नंबर मिला इसके सारे फैक्टर्स लिखने हैं। सपोज दैट 6 आया मल्टीप्लाई करने पे, तो फैक्टर्स क्या होंगे, 6 इंटू 2, 2 इंटू 3, यही फैक्टर्स होंगे बच्चों। तो जो भी नंबर होगा आप उसके पूरे फैक्टर्स लिखोगे। एंड द नेक्स्ट, बाय एडिंग और subtracting the factors split into कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। अब स्टूडेंट्स ये जो फैक्टर्स हैं इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट, 6 + 1 करोगे 7, 6 - 1 करोगे 5, 2 + 3 करोगे 5, 3 - 2 करोगे 1। फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म का कोफिशिएंट लाना है। x की वैल्यू, x का जो कोफिशिएंट होगा उसी फॉर्म में आपको लाना है। भी एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अगर हमको 5 लाना होता तो हम लोग फैक्टर 6 - 1 भी लिख सकते थे, 2 + 3 भी लिख सकते थे। वो कौन सा यूज होगा आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अभी मेथड समझना है, ठीक है। देन फैक्टराइज बाय ग्रुपिंग, फैक्टराइज बाय ग्रुपिंग 8th क्लास में आप लोगों ने डिस्कस किया होगा, बट वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में था, इक्वेशन नहीं था। सब कुछ वैसे ही रहा होगा, बस इक्वल्स 0 या एनी अदर नंबर नहीं था, ठीक है। तो कैसे आप लोग करोगे, जो नहीं सीखा है याद रखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अरेंज इन जनरल फॉर्म, इक्वेशन को लाया, फिर कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे, जो नंबर आएगा उसके सारे फैक्टर्स लिखोगे। अब फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद x का जो कोफिशिएंट है, पावर 1 का जो कोफिशिएंट है, उसमें स्प्लिट करना है। फिर बच्चों फैक्टराइजेशन से हम लोग ग्रुपिंग करके फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस इसके करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये। मेथड आपको पता हो गया, फिर बेसिक कैलकुलेशंस आ रहे हैं, देन यू हैव नो प्रॉब्लम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके स्टूडेंट्स, और एक लास्ट प्रॉपर्टी याद रखनी है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is 0, then each number is equal to 0। प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स कह देते हैं बच्चों। if the product of two terms, two numbers, if the product of
2 terms is 0, then each term is equals to 0. Suppose students a into b equals 0 है, then आप a equals 0 भी लिख सकते हो, b equals 0 भी लिखोगे, इसका भी यूज होगा। ठीक, अब स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स 0। ओके, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेथड्स याद है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का? मेथड्स आपको याद रखना है, ठीक है। अब ध्यान देना है स्टूडेंट्स, जनरल फॉर्म में है कि नहीं। पहला काम अभी आप लोगों को बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक दैट द गिवन इक्वेशन इज इन जनरल फॉर्म और नॉट। दिस इज इन जनरल फॉर्म। ओके, अब ठीक है, जनरल फॉर्म में अरेंज है, फिर क्या करोगे? कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 1 जा 6 आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा वो। देन अब स्टूडेंट्स आप लोग सारे फैक्टर से 6 के लिखोगे। 6 1 जा 6 हो रहा है और 3 2 जा भी 6 होगा। ओके, क्लियर हो गया। अब फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म का कोफिशिएंट लाना है। x का कोफिशिएंट 5 है, प्लस माइनस से अभी हमें कोई मतलब नहीं है। x का कोफिशिएंट 5 है, आपको इन फैक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 5 लाना है। बच्चों देखो, 6 माइनस 1 करोगे तो भी 5 आएगा और 3 प्लस 2 करोगे तो भी 5 आएगा। ठीक है, बाकी इसको ऐड करोगे, ये इनटू आपको भूल जाना है। फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमको 5 लाना है। तो 6 प्लस 1 करोगे 7 आएगा, उसकी जरूरत है नहीं। 6 माइनस 1 से 5 आ रहा है, 3 प्लस 2 से। अब प्रॉब्लम ये है 5 के प्लेस पे हम लोग 6 माइनस 1 लिखें या 3 प्लस 2 लिखें। व्हाट विल बी, दो ऑप्शन है, क्या हम लोग लिखें? तो दिस इज डिसाइडेड बाय द साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म। किससे? साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का साइन स्टूडेंट्स प्लस है तो आप पॉजिटिव फैक्टर लिखोगे। ठीक है, 6 माइनस 1 लिखोगे तो साइन प्रॉब्लम हो जाएगा। इट मीन्स एक्स स्क्वायर, 5 के प्लेस पर स्टूडेंट्स 3 प्लस 2x लिख दिया। अपने से कुछ भी नहीं लिख सकते हो, 4 प्लस 1 भी 5 होता है, ठीक है, लेकिन उसको नहीं लिखोगे, फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे। अब स्टूडेंट्स ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको पता है माइनस प्लस माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 2x प्लस 6 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप ग्रुपिंग करोगे 2 टर्म्स में, x कॉमन है, x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन बच्चों, तो माइनस कॉमन लिए हो, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस 3 हो गया। दिस ब्रैकेट हमेशा स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट सेम मिलेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट फोटोकॉपी रहेगा, जेरोक्स होगा। तो x माइनस 3 फिर से कॉमन ले लिया, बचा क्या बच्चों? x माइनस 2। ओके, अब देखो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो आप सबको 0 के इक्वल कर लो। x की वैल्यू 3, x माइनस 2 इक्वल 0, x की वैल्यू 2 हो जाएगा। सो दिस सोल्यूशन इज 2, 3। सो स्टूडेंट्स आपको सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी तो किसी भी तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल फॉर्म अरेंज करना है, देन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल 0। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। जनरल फॉर्म में अरेंज्ड है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे, 12 1 जा 12। अब 12 के फैक्टर्स लिखोगे, 12 1 जा 6 2 जा 4 3 जा। ओके, अब स्टूडेंट्स फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 7 लाना है, x का कोफिशिएंट। तो देखो स्टूडेंट्स 12 प्लस 1 करोगे 13, सब्ट्रैक्ट करोगे 11, 6 प्लस 2 करोगे 8, सब्ट्रैक्ट करोगे 4। इस फैक्टर को अगर आप ऐड कर दो, 4 प्लस 3 कर लो तो 7 आ जाएगा ना, और 7 की ही रिक्वायरमेंट है। आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, बट अभी सीख रहे हो, बेसिक बातें हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप करोगे। एक बार आपको प्रोफिशिएंसी आ जाएगी, देन आप लोग डायरेक्टली भी यूज करोगे। पहले कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। सो दिस इज एक्स स्क्वायर, 7 के प्लेस पे स्टूडेंट्स 4 प्लस 3 लिखोगे प्लस 12। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, ब्रैकेट ओपन कर लिया स्टूडेंट्स।
ग्रुपिंग करोगे, x कॉमन x प्लस 4, फ्रॉम हेयर 3 कॉमन x प्लस 4। अब स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट कॉमन है, x प्लस 4 बचा क्या x प्लस 3, x प्लस 4 इक्वल्स 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स -4, x प्लस 3 इक्वल्स 0, x की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स -3। सो द आंसर इज -3 एंड -4। ओके, गेटिंग माई पॉइंट्स, समझ में आया सभी को स्टूडेंट्स? तो ये इसका मेथड है बच्चों, जो आप लोग एग्जाम में सॉल्व करोगे, इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे। बाकी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के ही सिर्फ आंसर बता सकते हो, कुछ ट्रिक्स भी है तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपको अपने स्कूल के पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक बातें हम लोगों ने सीखी, 10th में भी पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है। तो आपके सिलेबस में इतनी बातें हैं, अगर आप लोगों को इक्वेशन पता हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने सॉल्यूशंस होंगे और मेथड्स क्या है सॉल्व करने के, तो इतनी बातें आप लोग माइंड में रखोगे तो आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये बेसिक क्लासेस, आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक आइडिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवाइज कर लोगे, ठीक? फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिससे ये चैप्टर क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग इतना पहले इसको रिवाइज कर लो, सॉल्व कर लो, फिर अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, गुड लक।